Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you, and we are back again with our parts of adjective. So we are doing the fifth part of adjective today, and we have already done many types of adjectives. तो आज I think ये final जो है video adjective से related वो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. So first one is indefinite adjectives. नाम से ही पता चल रहा है जो कि indefinite aspects के बारे में बताए नाउन के इनडेफिनिट एस्पेक्ट्स जैसे फ्यू एक वर्ड है, मैनी एक वर्ड है, मच, मस्ट, मोस्ट, all, any, each, every, either, nobody, several, some, etc. So these words, when they are used before a noun, these are acting as indefinite adjectives. For example, there's a sentence, I gave some candy to her. So candy is the noun here, and some. So some is talking about the quantity. सम बात कर रहा है कैंडी के बारे में कि कितनी कैंडी मैंने उसको दी. तो सम जो है वो एक कैंडी के एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है. तो सम इज दैट indefinite adjective which is used just before a noun. I want a few moments alone. Now this one again, moments is the noun here. Moments is abstract noun, okay? To know more in detail about nouns, okay, you can go to the noun videos that I have created on my channel, okay? So I want a few moments alone. So moment is that noun, and a few is talking about the quantity of moments, the amount of moments, okay, the aspect of moments, okay? So a few is that indefinite adjectives, right? moments के बारे में बता रहा है ना, उसकी one of the attribute, उसकी one of the aspect के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ पर मोमेंट को मॉडिफाई कर रहा है. ऐसे ही सम जो है कैंडी को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. मोमेंट के बारे में अ फ्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ऐसी सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट्स. तो जो राइटर्स हैं उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको जो मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज दैट वर्ड सेवरल राइटर. मतलब कई राइटर्स लिख चुके हैं रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में. Now, each student will have to submit homework tomorrow. Now, student is that noun, okay? Writer is that noun. So, student के पहले जो आपका modifier, जो आपका adjective आ रहा है, which is indefinite, okay? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हर एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. ऐसी सेवरल राइटर मतलब कई, तो पर्टिकुलैरिटी नहीं है, कई अनस्पेसिफिक है नाउन्स जो है, ठीक है? नाउन्स के बारे में अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, ओके? Next type of adjectives are articles, okay? So they also modify nouns, okay? जो noun को modify करते हैं उनके aspects के बारे में बताते हैं. adjectives की तरह act करते हैं articles. So we know that there are three articles, a, an, and the. So a and are those articles which are used to refer to unspecific noun, okay? जो specific नहीं है, और the जो है ना वो specific nouns के लिए mostly use होता है, ठीक है? The earth revolves around the sun, right? So the earth revolves around the sun, तो यहाँ पे specific है, ठीक है? सब चीजें specific है, ठीक है? Now an और जो a है ये थोड़े unspecific हो जाते हैं. For example, if I say a cat is always afraid of water, तो यहाँ पे किसी भी एक मामूली cat के बारे में बात करिए, किसी पर्टिकुलर कैट को यहाँ पर पिन पॉइंट नहीं करा है कि वो वाली जो कैट है वो वाटर से अफ्रेड हो रही है. नो, अ कैट यूजुअली, मतलब यूजुअली जनरली जो एक होती है एक बिल्ली, वो पानी से डरती है, राइट? सो अ कैट इज अनस्पेसिफिक एंड ऑल्सो इट इज मॉडिफाइंग अ कैट. कैट इज अ नाउन हियर. तो कैट की कौन सी कैट? एक कैट जो होती है, तो एक कैट जो है यही यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि आर्टिकल की तरह यूज हो रहा है. The cat is afraid of me. Now this is specific because the is used to specify things, right? To stress over things. So the cat is afraid of me. One particular cat के बारे में बात हो रही है. Okay. So the is unspecific adjective and article. Okay. Now this one is an electronic product should always be handled with care, okay? An electronic मतलब एक जो electronic product होता है ना वो care के साथ उसको हमें handle करना चाहिए. So this is again unspecific in nature, right? So an जो है, a जो है ये unspecific होते हैं, the जो है वो specific होते हैं. Now they are modifying these nouns, okay? Cat is that noun, cat is that noun, electronic product is that noun, because we know that noun is also a name of a thing. So electronic product is that thing and also
अ नाउन. So नाउन से पहले जो चिपक कर जो आपका एन आ रहा है that is also acting as an adjective. Okay, क्योंकि नाउन के एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा है कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है ना उसको हमें केयर के साथ हैंडल करना चाहिए. Now, last one is the degree of adjectives. Okay, so the topic is the degree of adjectives when we know that कोई adjective है जो कि descriptive mostly adjectives होते हैं. Descriptive adjectives के बारे में जानने के लिए मेरे पिछले जो parts है फर्स्ट सेकंड पार्ट उनको उन पर जाइए, उनको देखिए, तब आपको descriptive adjectives के बारे में बिल्कुल बिल्कुल समझ आ जाएगा. So डिग्री क्या होती है? देखो, जैसे अब एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. इफ आई से ब्यूटीफुल, बिकॉज ब्यूटीफुल इज दैट एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स समथिंग, राइट? ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है. सो ब्यूटीफुल की जो फर्स्ट फॉर्म हो गई दैट इज ब्यूटीफुल, द पॉजिटिव फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म. अब सेकेंड फॉर्म जो हो गई उसकी मोर ब्यूटीफुल हो गई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव adjective. And if I say the third form of beautiful which is most beautiful, so that is superlative adjective. Okay, beautiful, more beautiful, most beautiful, right? So positive, comparative and superlative. First form is positive, second one is comparative and third is superlative. These degrees are applicable only for descriptive adjectives, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. descriptive adjectives के बारे में जानने के लिए पिछले वीडियोस को देखें. तो ये जो वीडियो जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 टाइप की डिग्री होती है, ठीक है. इनसे रिलेटेड रूल्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है. IBPS के पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं इसके रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सो let's go on examples. He is a good boy. So good is that positive degree. Okay, पहली जो डिग्री है, पहली जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो है गुड. फिर कंपैरेटिव हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो चीजों के बीच में, ठीक है, बिल्कुल बराबर की चीजों में कंपेयर होता है, ठीक है. ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, क्योंकि ही जो है वो भी एक बॉय है और दूसरा कोई बॉय से वो बेटर है. तो इन दोनों में यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है. तो दैट इज वाई इट इज comparative degree better. Now superlative degree is that which is which is not comparing, जो कि होता है कि बिल्कुल जो इंटेंसिटी बिल्कुल हो जाती है एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है, ठीक है, सुपर हो जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ बेटर नहीं हो सकता है. सो ही इज द बेस्ट बॉय. ऐसे ही मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट. तो दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री जो कि सुपर होती है, जो कि सुप्रीम होती है, ठीक है. सो दैट डिग्री, दैट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज नोन एज सुपरलेटिव एडजेक्टिव. सो वी हैव डन टुडे 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, हमने डिग्रीज के बारे में बात कर ली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है. और जो दो हमने टाइप के एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो and give this video a thumbs up and comment on my video, and I'll see you all in my next videos. Okay, and tab tak ke liye bye bye, take care, love you all.